Hello everyone, welcome to the Manuvla classes. I am Naresh Sharma and today is 23rd of July and I am going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to have some questions to revise the previous day session or some current news with the help of MCQs. So first of all, just have a look on the questions. The question number 1 is regarding the point we also discussed in the recent day session. 18 जुलाई के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था कि देयर वाज अ इशू और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ पॉइंट्स रखा था दैट स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट चेंज द लिस्ट ऑफ SC/ST और उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है. सो SC/ST के लिए कुछ शेड्यूल्स हैं, 5th एंड 6th शेड्यूल, तो उसी के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है. द हियर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक deals with the administration of the tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So here you have to find out the list which is especially to deal with Meghalaya, Assam, Tripura and Mizoram. So the list is actually the 6th schedule. So 6th schedule is especially to deal with these 4 states for the tribal issues. The next question is question number 2. Here you have to also fill in the blank of the constitution lays out provision for administration and control of scheduled areas, and scheduled tribes in states of other than Assam, Meghalaya, Tripura and मिजोरम. बिकॉज ये जो 4 स्टेट्स हैं इनको हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं 6th शेड्यूल में. सो विच वन इज द शेड्यूल which is to deal with the other areas the other than all these 4 states. So it is the 5th schedule. So ये 2 शेड्यूल हैं, 5th and 6th शेड्यूल. जो 5th शेड्यूल है वो बाकी सारे के सारे शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कंट्रोल है, उसको डील करने के लिए है. बट जो 6th शेड्यूल है उन 4 स्पेशल स्टेट्स के लिए है, बाकी काम उनका भी वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज established with a view to provide safeguard against the exploitation of scheduled caste and to promote and protect their social, educational, economic and cultural interest. इसके लिए हमारे पास में एक कमीशन है, that is National Commission for Scheduled Caste. So here you have to find out what is the nature of this commission from the point of view of legal or constitutional point of view. So it is a constitutional body, a statutory body, illegal body or based on order from United Nations General Assembly. So actually the correct answer is constitutional body because it's have been dealt with by the different provisions of the Indian Constitution. स्टार्टिंग में सेपरेट एक 1% कमीशन हुआ करता था, उसके बाद में फिर चेंजेस आए, दोनों को सेपरेट कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. बाद में फिर OBC कमीशन भी आया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आर्टिकल 338 वाज अमेंडेड एंड erstwhile नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब was replaced by 2 separate commissions from the year. So जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन दोनों को सेपरेट करके एक सिंगल दोनों के लिए कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था. सो इट वाज इन 2004. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. आर्टिकल दिस of the Indian Constitution vests the power to specify SC in various states and union territories with the President of India. So this is the article जो प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को पावर्स कि वो जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसमें एडिशन कर सके और उसमें से किसी नेम को किसी ट्राइब को उससे डिलीट कर सके. सो ये विच वन इज द आर्टिकल जो इस इशू से डील करता है. देखो आर्टिकल 32 आपको पता ही होगा कि क्या है. आर्टिकल 226 ये भी आपको पता होगा, तो कमेंट में आप बता दीजिए कि ये एटलीस्ट बेसिक अगर ये भी आपको नहीं पता है सो इट्स शेम, मींस ये बेसिक सा तो आपको पता होना चाहिए.
बिकॉज ये हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन है, ऑप्शन 341 है इसमें। तो आर्टिकल 341 एक्चुअली दिस इज टू डील विद द सैड इशू। और जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो आर्टिकल 123 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर्स। सो मैं आपके लिए यहाँ पर 3 आर्टिकल एज ए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ये दोनों ही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ये भी मैंने आपको इसमें हिंट दे दिया। फिर है आपके लिए आर्टिकल 123, ये प्रेसिडेंट की एक पावर से रिलेटेड है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गए और आप मुझे बताइए कमेंट्स में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टुडेज करंट अफेयर्स। सो सबसे पहले हम चलते हैं, इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 7% दिस ईयर। और ये कह रहा है कौन? इकोनॉमिक सर्वे। देखो अभी जब न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट जो है पावर में आई, तो अब एक बजट तो आना ही था। सो एक न्यू बजट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और यू नो कि जब भी नया बजट इंट्रोड्यूस होता है तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, या जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनका एक सर्वे करता है। और उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, डेटा होता है कि प्रीवियस ईयर में क्या रहा। सो इकोनॉमिक सर्वे बजट से जस्ट एक दिन 2 दिन पहले उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो आपके मतलब के हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि अब हम प्री कोविड जो ग्रोथ थी उसमें हम पहुंच चुके हैं। इट मींस कोविड से पहले जैसे नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं। और आने वाले टाइम में हमारी जो ग्रोथ है वो 6.5 से लेकर के 7% तक रहने वाली है, जो हम बात करें 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर की। सो इन कमिंग ईयर्स पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का जो सर्वे था, मींस लास्ट ईयर का जो सर्वे था 24 तक का, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। फिर ये कह रहे हैं कि अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है आने वाले ईयर्स में वो है कि हम अपने यहाँ जो एक इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल करें और अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दें। मींस इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को 2 चीजों पर मेनली फोकस करना होगा। नंबर 1 तो इनइक्वालिटी पर फोकस करना होगा और नंबर 2 है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। बोला इन 2 एस्पेक्ट्स पर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। फिर कौन इस इकोनॉमिक सर्वे को इस बार कौन इसके ऑथर हैं? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दैट इज वी आनंद नागेश्वरन, तो उन्होंने इस इकोनॉमिक सर्वे को इस बार ऑथर किया है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जितना भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू ईज द बिजनेस रूल, जिससे कि गवर्नमेंट पर थोड़ा बर्डन कम हो जाए। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए तो रूल्स को थोड़ा सा इजी करना होगा। प्लस यहाँ पर फिर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं प्राइवेट सेक्टर को। वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो एक्सेस है, आप स्विमिंग कर रहे हैं प्रॉफिट पर, इतना सारा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं। सो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको चाहिए कि वो प्रोडक्टिव जॉब्स वगैरह लेकर के आए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दे। तो फिर ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका भी भला है इसमें, और हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें भी आप रोल प्ले कर पाओगे। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा किया है और उसमें ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में अगर हम सारी चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैपिटल इंटेंसिव ये 2 टाइप की जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। मींस अगर हम इंडिया जैसी इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे तो अभी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे लोगों की जॉब को जो है छीन लेगी। और दूसरा,
अगर हमारे यहाँ हम ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे जो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो, इट मीन्स the industries which can require thousands of crore to start a setup, to start the economic activities, तो फिर जो पुअर पीपल है, जो कॉमन पीपल है, उसको पास तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ नहीं है। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैपिटल इंटेंसिव जो ग्रोथ है या जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसके बजाय हमको ध्यान देना होगा किस पर, लेबर इंटेंसिव। मींस ऐसी इंडस्ट्रीज हमको लगानी होंगी जो बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट रखती हो, इट मींस उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। नेक्स्ट फिर ये बात करते हैं कि अब हाँ बजट की फिर बात करती है मिस निर्मला सीतारमन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि इस इकोनॉमिक सर्वे को, बजट को इंट्रोड्यूस कौन करता है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सो निर्मला सीतारमन जी ने इसमें यह कहा है कि आने वाले टाइम में हमारा जो मेन फोकस होगा, एक तो इन इक्वालिटी को हम रिड्यूस करेंगे, दूसरा हम जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, वो मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। प्लस जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का गैप है कि लोगों के पास एजुकेटेड है, वो एजुकेशन है उनके पास, बट उनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो मींस जो हमारा हमको एम्प्लॉयमेंट के लिए राइट एटीट्यूड और राइट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उस गैप को हम फिल करेंगे। मींस कंपनी को चाहिए कुछ और स्किल्स, लोग वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो स्टडी करके जा रहे हैं कुछ और ही, तो वो जो रिक्वायरमेंट और सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स, उसमें गैप है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि जो इकोनॉमिक सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करें कि एम्प्लॉयमेंट को क्या करें, इंक्रीज करें, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो लोगों को जॉब्स मिलेगी, जॉब्स मिलेगी तो उनके पास में अर्निंग होगी, उनकी पॉकेट में मनी आएगा, जब उनकी पॉकेट में मनी आएगा तो उससे मार्केट में वो कुछ परचेज करेंगे और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट मार्केट में सेल होंगे। तो यहाँ इनका कहना है कि जो कंपनीज हैं दे शुड ट्राई टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, और वो उनके लिए भी फायदे की बात है। फिर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि देखो हम रिसेंट ईयर्स में अगर देखें, सो कंट्री में एक बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक थिंग्स जो है थिंग जो डेवलप हो चुकी है, और वो ये कह रहे हैं इसके लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री ने। क्या है ये? प्राइवेट इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में ये कह रहे हैं कि देखो इस प्राइवेट इंडस्ट्री का जब से बहुत ज्यादा डोमिनेंस हुआ तब से एक इश्यू क्रिएट हो गया, और वो उसमें बता रहे हैं कि टॉक्सिक मिक्स ऑफ हैबिट्स इज सब्सटेंशियल एंड दैट इज मायोपिक है, और द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू दिस टॉक्सिक मींस लोगों की जो हर समय स्क्रीन पर नजर रहती है, मोबाइल स्क्रीन पर हो, लैपटॉप की स्क्रीन पर हो, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हो, उन पर जो सबका मींस ध्यान उस पर लगा हुआ है, हमारे आने वाला जो यूथ है, हमारी जो करंट जनरेशन है, वो बहुत ही नेगेटिवली उससे अफेक्टेड है। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि फॉर इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन बी गेनफुली एम्प्लॉयड दे नीड स्किल्स एंड गुड हेल्थ। हमको दोनों ही चीजें चाहिए। अब जो सोशल मीडिया है, स्क्रीन टाइम है, सेडेंटरी हैबिट्स हैं, अनहेल्दी फूड है, ये सब लीदल मिक्स है, मीन्स जान लेने वाला मिक्सचर ये हमारी सोसाइटी में डेवलप हो गया है, और गवर्नमेंट्स को, प्राइवेट सेक्टर को, इन सबको इस पे काम करना होगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये सब क्रिएट करने में रोल प्ले किया है प्राइवेट इंडस्ट्री ने। तो प्राइवेट इंडस्ट्री को इसमें शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारा गेन हुआ, लेकिन ये तो देखो कि हमारी सोसाइटी को हम कहाँ ले जाकर के खड़ा कर दिए। जो यूथ है अब बहुत बुरी तरह से, अगर वो मींस जो है इल रहेगा, जल्दी जल्दी बीमार होगा, उसका जो स्टेमिना है बहुत बुरी तरह से अगर अफेक्टेड हो जाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप डाउन हो जाएगी, और ऐसे इश्यूज के बहुत सारे इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में। इसकी वजह से इरिटेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन के रेट्स बढ़ रहे हैं,
और फिजिकल वायलेंस का इशू बहुत सोसाइटी में क्रिएट हो गया है। उसके अलावा जो फैमिली के रिलेशंस हैं और उसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के जो इश्यूज हैं उन सब की बात करते हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि डाइवोर्स के रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चे मोबाइल स्क्रीन में लगे हुए हैं, सबको चश्मे लग गए। वो सारे इश्यूज को हमें शॉर्ट करना होगा। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पर ध्यान देगी कि सोसाइटी को हम लॉन्ग टर्म में कहाँ ले जाना चाहते हैं। हम उन चीजों से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जिनसे हमारी सोसाइटी में एक जहर जैसा जो टॉक्सिक कल्चर है वो डेवलप हो चुका है। फिर ये बात करते हैं कि हमको चाहिएगा कि हम सस्टेनेबल, स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव और बैलेंस्ड ग्रोथ को लेकर के मूव ऑन करें। फिर ये बात करते हैं डिफरेंट अप्रोच। तो ये कह रहे हैं कि देखो, जिस अप्रोच से अब तक हम चल करके आए थे, तो उस अप्रोच से तो फिर हमको क्या मिला, सोसाइटी में सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, डाइवर्स के रेट्स, रेप्स के रेट्स, है ना, लोगों की आंखें खराब हो गई, हेल्थ इश्यूज सोसाइटी में बहुत क्रिएट हो गए। तो वो कह रहे हैं इस अप्रोच को हम आगे लेकर के नहीं चलेंगे, हम नई अप्रोच से जाएंगे। प्लस ये कह रहे हैं कि इफ वी कंपेयर करंट पर कैपिटा इनकम विद 1990s, तो आज हमारी जो इनकम है वो 1990 से 2500 डॉलर तक हम जो पहुंच चुके हैं। अब हमारा टारगेट है कि हम इसको पर कैपिटा इनकम को $10,000 पर लेकर के जाएंगे। और हमारा टारगेट है कि इंडिया को हम 2047 तक क्या बनाएंगे, एक डेवलप्ड नेशन में हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे। फिर ये कहते हैं कि फाइनेंसिंग द ग्रीन ट्रांजैक्शन। तो अब हम ऐसे इश्यूज पर जो ज्यादा काम करेंगे कि जो ग्रीन डेवलपमेंट है उसको फोकस करेंगे। छोटी इंडस्ट्रीज हैं, छोटे दुकानदार हैं, एमएसएमई सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, फार्मर्स फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, उनको हम प्रायोरिटी में रखेंगे और उन पर हमारा मेन फोकस होगा। सो इस बार का जो बजट अभी आया है उसके रिगार्डिंग में ये है, बिकॉज कल ही बजट इंट्रोड्यूस हुआ है। बाकी इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, हम धीरे धीरे उनको डिस्कस करेंगे। सो नाउ इस इश्यू पर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। नेक्स्ट है हमारे पास में कावड़ यात्रा रो सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर ऑन स्टॉल्स। ये एक इश्यू चल रहा है। इसमें से मेन पॉइंट पर मैं आपको लेकर के जाऊंगा कि देखो, कई बार क्या होता है, सोसाइटी में बहुत सारे रूमर्स क्रिएट हो जाते हैं, जबकि होता कुछ है, दिखता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, रियलिटी कुछ होती है। ये इश्यू था कि जो शॉपकीपर्स हैं, स्पेशली फूड सेलर्स हैं, उनको अपनी जो शॉप्स हैं उन पर अपना नाम लिखना था। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया। सो अब उसमें सोशल मीडिया पर आपको डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस, वीडियोज, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। उसमें इश्यू क्या था? इश्यू ये था कि जो शॉप्स हैं, जो फूड सेलर्स हैं, वो अपना नाम लिखें अपनी शॉप्स पर, और वो इश्यू चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो अभी इस पर क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ऑर्डर गवर्नमेंट लेकर के आई है वो ऑर्डर पुलिस के थ्रू मत लाओ, उसको आप लेकर के आओ प्रॉपर। एक जो आपका सिस्टम है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटीज हो, म्युनिसिपैलिटी जो है कॉर्पोरेशन हो, उनके थ्रू लेकर के आओ इसको, ना कि पुलिस के थ्रू। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको ऑर्डर लगाया, तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको कर सकती है। अब सोशल मीडिया पर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कि भाई जब हम बहुत सारी जगह पर अपनी आइडेंटिटी को बताना चाहते हैं, तो जब हम फूड सेल कर रहे हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर उनका नेम, उनका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर उस शॉप ऑनर के पास में, उसकी होटल पर, उसकी इंडस्ट्री पर लिखा होना कंपलसरी है। जीएसटी जो हमारा एक्ट है उसमें भी कंपलसरी है। दूसरा हमारा फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें भी ऐसा रूल है कि आपको अपना नेम वगैरह बताना होगा, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप अपने सामने लिखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखे सोशल मीडिया पर कि लोगों ने खाने में जो है स्पीचिंग कर दी, लोगों ने खाने में टॉयलेट मिला करके सेल कर रहे हैं, नाली का जो पानी है उसमें फ्रूट्स धो करके उनको मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के अगेंस्ट में अगर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना होगा तो उनकी आइडेंटिटी कहाँ से लाओगे आप? दूसरा, गवर्नमेंट का ये रूल है, जैसे आप एनसीटी ऑफ दिल्ली में देखोगे, बेंगलोर में, बॉम्बे में, बहुत सारे ऐसे मेट्रो सिटीज में देखोगे, तो जो प्राइवेट बस, ऑटो,
उनके लिए ये कंपलसरी है कि आप अपने बस के अंदर, अपने ऑटो के अंदर आपने ओनर का नेम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस आप सब लगाइए। दिल्ली में क्या होता है, बहुत सारे ऑटो वाले ऐसे हो रखे हैं जो अपने ऑटो को देखने में तो लगेगा कि वो जो है सवारी के लिए या अर्निंग के लिए चला रहे हैं, वो बड़े बड़े स्कैम भी कर जाते हैं और जो पैसेंजर होता है उसका सारा का सारा माल लेकर के लूट करके उसको गायब हो जाते हैं। अब ऐसे प्लेसेस पर स्पेशली ये जो आपकी टैक्सी हो गई, ओला उबेर वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, रैपिडो वाले हो गए, इनके जितने भी ऑटो हैं, कार हैं, सबके अंदर उनका नाम और फोटो सब शो होना चाहिए कि जो पैसेंजर्स बैठ जाते हैं, बाहर से आते हैं, उनको लेट लूट करके गायब हो जाते हैं। अभी रिसेंट की मैंने देखा था एक इशू, तो उसमें भी ऐसा हुआ। इट मीन्स जब पैसेंजर उसमें बैठे तो उसका पिक ले ले, आपको भी लेना चाहिए, उसका पिक ले जिसपे उसकी फोटो डिटेल वगैरह सारी की सारी हो। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, बाकी भाई रूमर वगैरह को खत्म करो और गवर्नमेंट प्रॉपर लॉ के थ्रू आए, पुलिस के थ्रू अपने ऑर्डर्स को लेके ना आए। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ और पर, दैट इज वेस्ट बंगाल राजभवन। या इशू क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल के कुछ एमएलएज नए इलेक्ट होकर के आए और उन पर गवर्नर के ऑफिस से लगाया गया 500 रुपीज का फाइन। इशू क्या था, देखो रूल ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आर्टिकल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 188 जो भी नए एमएलए आएंगे वो क्या करेंगे, ओथ लेंगे, उस ओथ सेरेमनी को कंप्लीट करेंगे और उस ओथ को सुपरवाइज कौन करेगा, या तो गवर्नर करेगा या गवर्नर किसी अदर पर्सन को नॉमिनेट करे वो करेगा। इट मींस दो ही पर्सन कर सकते हैं, या तो गवर्नर स्वयं करे या गवर्नर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे अपनी पावर कि भाई इनकी शपथ आप करवा देना, इनकी ओथ आप करवा देना। अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर ने इनकी शपथ खुद से नहीं कराई, उन्होंने एक नोटिफिकेशन अपने ऑफिस से निकाला और उसमें डेप्यूटी स्पीकर को ये कहा कि आप इन दोनों एमएलए की शपथ करा देना। तो इनकी शपथ डेप्यूटी स्पीकर ने कराई नहीं, वो करा दी स्पीकर ने। तो टेक्निकली तो ये बिना ही शपथ, मतलब स्पीकर ने कराई, जबकि वैलिड कौन सी होनी थी, गवर्नर वाली, या गवर्नर ने जिसको नॉमिनेट किया है वो शपथ, उसकी जो ओथ है उसको कंडक्ट करवाते, लेकिन वो करा दी स्पीकर ने। तो यहां से इनको नोटिस भेज दिया कि आपकी शपथ इनवैलिड है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एमएलए एमपी अगर विदाउट ओथ टेकिंग वो पार्लियामेंट में या स्टेट की लेजिस्लेचर में सेशन को अटेंड करता है, उसमें एंट्री करता है, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उस पर फाइन लगाया जाता है और वही फाइन उन पर लगाया गया है। सो इसको आप देख लीजिएगा कि आर्टिकल 188 क्या है और जो एमएलएज होते हैं उनकी ओथ टेकिंग कौन करवाता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स आईआईटी दिल्ली टू सॉल्व एम्बिगियस नीट क्वेश्चन। अब देखो यहां से पता चलता है कि जो यूथ है हमारा, उनके साथ में जो ऑफिसर्स हैं बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं, चाहे वो एनटीए में हो या नीट का एग्जाम कराने वाले हो, यूजीसी का कोई भी एग्जाम कराने वाले हो, अपनी मर्जी से वो क्वेश्चन बना देते हैं और जो स्टूडेंट्स मींस जो नेशनल लेवल पर इशू बन जाए ऐसे क्वेश्चन आप क्यों उसमें डालते हो। अब इशू क्या है, सुप्रीम इस यूजी नीट का जो एग्जाम था 2024 का, जिसमें एग्जाम लीक हुआ था, उसकी बात जो हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है किसको, आईआईटी दिल्ली को, कि भाई इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दो हमको विद इन 24 आवर्स, बिकॉज ये उसका क्वेश्चन है, आप आर्टिकल में भी देख लोगे, ठीक है। और इसमें दो स्टेटमेंट ने जिन पर क्या है, कंफ्यूजन है। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट पर कंफ्यूजन है, तो उसमें एक डायमेंशन से, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग न्यू जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो दोनों में क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें बहुत बड़ा मींस जो है एग्जैक्ट स्कोर मिल गया उनको, 100% वाला स्कोर भी मिल गया। तो ये इशू देखो हम सोसाइटी में देखते हैं कि कैसे सोसाइटी में ऐसी चीजें होती हैं कि बड़े बड़े प्रोफेसर जो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि जो बच्चे 12th पास करके एग्जाम दे रहे हैं वो उस लेवल के क्वेश्चंस में कैसा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। भाई आप या तो ये चाहते हो कि बच्चे क्वेश्चन कर ही ना पाए, सॉल्व ही ना कर पाए,
और ऐसा चाहते हो तो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मत डालो उसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम IT यूनियन प्लान्स कैंपेन इन कर्नाटका अगेंस्ट 14 आवर वर्क डे प्लान फॉर एम्प्लॉइज। कर्नाटका गवर्नमेंट एक इश्यू पर काम कर रही है, ऐसा बता रहे हैं कि कर्नाटका में जो IT प्रोफेशनल्स हैं, IT में जॉब करते हैं, उनके जॉब आवर्स को 14 आवर्स कर दिया जाए। तो ये मीन्स बड़ा खतरनाक सी बात हो गई, आप खुद सोचो। तो इसके अगेंस्ट में जितने भी IT एम्प्लॉइज हैं कर्नाटका के, उनकी यूनियंस क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं प्रोटेस्ट। अब आप खुद से देखिए कि 24 आवर का एक डे नाइट का जॉइंट सिस्टम होता है, उसमें से अगर कोई पर्सन 14 आवर्स ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसके पास बचे आपके 10 आवर्स। जो आदमी सारे दिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें लगाए होगा, उसको एटलीस्ट कम से कम 9 आवर्स का उसको क्या चाहिए, स्लीप चाहिए। ठीक है, वो 9 आवर्स भी स्लीप नहीं करता है, अगर वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट चलता है, बोला 8 आवर्स का स्लीप चाहिए, तो बचे उसके पास कितने, 2 आवर्स। अब देखो, तो उसकी पर्सनल लाइफ के लिए 2 आवर्स बचे। अब ऐसे 2 आवर्स में उसको मॉर्निंग में वो अपनी जितने भी नेचुरल वर्क होते हैं वो भी कर ले, खाना भी खा ले, ठीक है, अपनी बेदिंग भी कर ले उसी मीन्स 2 आवर्स में। और मॉर्निंग के लिए अगर हमने 1 आवर रख दिया, तो मॉर्निंग में उस 1 घंटे में उसको सारा कुछ करना है, नहाना है, खाना भी खाना है, और अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो कुछ भी लेकर के जाना है वो सब लेके जाना है, और उसी टाइम में उसको ट्रेवल भी करना है उसी 1 आवर में। और ऐसे ही अपोजिट कर दो, शाम को जब ऑफिस से लौट करके आएगा, रिटर्न करेगा, तो उस 1 आवर में उसको सारे काम करने हैं, खाना भी खाना है, ऑफिस से घर पे भी पहुंचना है। इट मीन्स आप इससे अच्छा तो क्या करो, जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं या प्राइवेट इंडस्ट्री वाले जितने लोग हैं, भाई आप उनको पॉइजन दे दो, उनको मार डालो, वैसे ही मार दो उनको, है ना। इससे धीरे धीरे मरेंगे, एक ही बार में खत्म करो सबको, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इंडस्ट्री को, उनके एम्प्लॉइज को स्पेशली। बिकॉज जो एम्प्लॉइज के ऊपर वाले हैं, इट मीन्स जो ऑनर्स हैं कंपनीज के, उनका अगर बस चले तो वो डेली क्या करें, बोला इन जो एम्प्लॉइज हैं उनके बॉडी से 1-1 यूनिट ब्लड डेली निकालें और उसको मार्केट में सेल कर दें, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाए। तो कुछ कुछ ऐसा ही तो लग रहा है कि अगर ये IT प्रोफेशनल के साथ में 14 आवर्स उनसे जॉब करवाएंगे, तो क्या वो जीवित रहेंगे, क्या वो कुछ अपना काम कर पाएंगे लाइफ में। और सारे दिन जब वो सिटिंग करेंगे, सिटिंग जॉब करेंगे, तो उनकी जो बैकबोन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज उनकी लाइफ में क्रिएट हो जाएंगे। आने उनकी लाइफ में कह रहा हूँ कि जो 60 ईयर्स अगर जिएगा तो वो 40 ईयर्स में ही खत्म हो जाएगा। जहां हम डेवलप कंट्रीज में जब बात करते हैं तो वहां पर बात होती है कि भाई अभी तक तो 5 डे वर्क तो चल ही रहा है, 5 डे वीक। वहां पर वो कह रहे हैं इसको 4 डे पर लेकर के आओ, लोगों को पर्सनल लाइफ के लिए टाइम दीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि 14 डेज कर दीजिए और वो भी 7 डे वर्किंग करवाओ। तो सोचो भाई कहाँ लेकर के जाएंगे सोसाइटी को। तो इस पर बड़ा इश्यू क्रिएट हो गया है। आप बताओ कि इसमें आप कितना इससे सहमत हैं कि जो है 14 आवर्स के जो है जॉब आवर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पोस्ट ऑन डिसेबिलिटी कोटा स्पार्क्स डिबेट ऑन सोशल मीडिया। पर एक बड़ी डिबेट आ गई है और एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने एक पोस्ट लिखा और पोस्ट वाकई में आपको भी शायद पसंद आए, कि आप भी बताना कि ये कैसा आपको लगा। ये कहती हैं कि विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द डिफरेंटली एबल्ड, डज एनी एयरलाइन अ पायलट हायर अ पायलट विद डिसेबिलिटी। तो क्या कोई एयरलाइन किसी पायलट को जो डिसेबल्ड हो बॉडी से उसको हायर करती है? क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से अपनी सर्जरी करवाना चाहेंगे जो डिसेबल्ड हो? तो यहाँ पर ये कहते हैं क्या आप किसी ऐसे एडवोकेट से अपना केस फाइल करवाना चाहेंगे जो मेंटली सिक हो, मेंटली इंसेन हो, वो सुन नहीं सकता हो, बोल नहीं सकता हो? तो ये इन्होंने यही बात यहाँ पर बोल दी कि ये जो जॉब्स हैं IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनमें डिसेबल्ड कैंडिडेट को हम लेकर के आते हैं, जबकि इन जॉब्स का नेचर क्या कहता है कि भाई आपको मोस्टली फील्ड वर्क करना होता है, लोगों की बात सुननी होती है। तो जब आप चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए ठीक है, रेस्पेक्ट है, सिंपैथी है।
लेकिन बिकॉज उस एक पर्सन की जॉब पर लाखों लोगों की लाइफ उस पर डिपेंड होती है, तो उनको कहीं और भी तो हम जॉब दे सकते हैं। तो इस पर बड़ा इश्यू चलेगा। आप बताइए कि क्या ऐसी पोस्ट के लिए अगर गवर्नमेंट को लोगों का भला करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, तो क्या आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जुडिशरी, इसमें जॉब्स क्या लोगों की बेरोजगारी मिटाने के लिए है? क्या ये जॉब्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने के लिए है? और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां आप अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हो जॉब्स प्रोवाइड करके। तो क्या अब आप अनएम्प्लॉयमेंट को जो है रिड्यूस करने के लिए क्या आर्मी में आप डिसेबल्ड पर्सन को सोल्जर बनाएंगे? तो कुछ ऐसा ही इन्होंने लिखा है। तो ये भी एंगल इसमें देखने को आ रहा है। बाकी जो पूजा खेड़कर वाला इश्यू चल रहा है, आईएएस ऑफिसर जो अपना डिसेबल्ड सर्टिफिकेट वगैरह बना करके उसमें आईएएस बन गई, और भी कई सारे लोगों के इश्यू बाहर निकल करके आ गए। सो आप बताइए कि आपका इस पे क्या कहना है। नेक्स्ट है धोती इशू। कर्नाटका गवर्नमेंट अब एक गाइडलाइंस वगैरह लेकर के आ रही है कि वो एक फार्मर थे, उनको उन्होंने मॉल में एंट्री नहीं करने दी। तो ऐसा रूल तो ऑल ओवर इंडिया आना चाहिए कि लोग अपनी पसंद के कपड़े पहन करके अपने ट्रेडिशनल अटायर में जा सके। तो ये रूल अब लेकर के आ रहे हैं। हालांकि इस मॉल को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि आपका मॉल 7 डेज बंद रहेगा एज ए पनिशमेंट। फिर हम आ जाते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज पर। तो अभी जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जो बाइडेन ने अपना नाम पीछे ले लिया और उन्होंने सपोर्ट किया है कमला हैरिस को, जो इंडियन ओरिजिन की है। सो अब देखते हैं कि कौन इसमें जो है प्रेसिडेंट बनेगा। बाकी अभी तक तो देखने में ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, बाकी इसमें देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं बांग्लादेश स्टूडेंट ग्रुप। अभी बांग्लादेश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, वहां पर सिटीज में आर्मी को उतरना पड़ा, तब जाकर कंट्रोल हुआ। दूसरा एक इश्यू हमें देखने को आया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, कि बांग्लादेश के जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के कुछ लोग जो यूएई में रहते हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट कर दिया अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो यूएई की पुलिस उन्होंने उठा करके वहां पर उनको सबको क्या किया, जेल टर्म प्रोवाइड करा दी उनको पनिशमेंट की। किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो किसी को 7 ईयर 20 ईयर्स। ठीक है, तो इतना टफ वहां पर लॉ है। अब आप खुद सोच लीजिए, ये आप पे डिपेंड करेगा कि जो स्टूडेंट थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे यूएई में, बांग्लादेश में अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उनको तुरंत बना दिया। तो क्या इसको हम स्ट्रिक्ट लॉ कहेंगे या फ्रीडम को किल करने वाला लॉ कहेंगे? आप देख लीजिए कि आप इसे किस एंगल से देखना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।